आज जो है हम खड़े हैं प्रेस क्लब में, जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो कि है इंश्योरेंस फ्रॉड को लेकर के। और ये जो इंश्योरेंस स्कैम है, जहाँ हम एक तरफ बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो कि हम सोच करके लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और ऐसे में एक इंश्योरेंस फ्रॉड होना जिसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं, तो लाइफ बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेन दिखती है। और आइए ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बात करते हैं कि क्या है ये माजरा। वी आर हियर एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वी नो दिस इंश्योरेंस फ्रॉड इन विच big names are there. Aditya Birla Group, which is a giant group, and apart from that HDFC Life has also been taken into loop. Sir, in this scenario, what would be your next course of action, seeing everything? You know the system well because you are already appealed in Supreme Court and other stuff, so considering every fact, your next course of action from here? See, now very first when I saw that this is what a big scam are running by this big giant corporates in the insurance sector. This sector is booming right now in India. As if you see the Western country, every thing has insured. Now in India, in the name of various policies, they are running Ponzi schemes. They are violating rules of IRDA, insurance laws. So now when I came to know that this is what has happened with the Sushil Bapna, that Kumar Mangalam's team, means Aditya Birla Sun Life Insurance, had defrauded and done a forgery, and they have done this thing, signed on the check, signed on the letter which he had not issued. So we took this matter before the court, Metropolitan Magistrate Andheri, and court has considered this, that the signature is fraudulent signature and there is a substance prima facie case, and then subsequently FIR was registered. As an Indian citizen, we have to come together because these people are very big. They are going to create a problems. As we have seen that how that lady was trapped by one of the HDFC Life Insurance company. So if we'll come together, we'll fight. And the first stage after this press we are going to do is we are going to file a memorandum before the Chief Minister of Maharashtra, PMO and IRDA. We are asking more people to join because we want that the government and the policy holder and the authorities should take this seriously. It's a problem which is facing by everyone in all over India. So we'll definitely going to file a PIL. And right now we are preparing some letters to be filed before the Chief Justice of Bombay High Court and Chief Justice of Supreme Court of India for taking so much action, because this issue is very important issue in this difficult time of COVID-19. Of course, this insurance sector has some guidelines, and of course some hidden statements are also there. Generally we see that insurance is a subject matter of solicitation, people write. So how much do you agree with that statement? It needs to be more elaborated while selling the particular product? Yes, see, if suppose this is a bottle, I am saying this is a bottle, and in this bottle I am going to give you a natural mineral water on pretext of 1 month, 2 month EMIs, and suppose after 2 installments, if company says no, we are going to give you a normal water, then will you be able to accept this? No. Their T&C, terms and conditions, has to be very expressly explained, because their agents are very eager to increase the number of policies, so that's why they are making false statements. And people, those who are illiterate, those who are not that much educated and related to insurance sector, they are the main victims. Those who know something, like Sushil Bapna, who knows that these are the policies, so he had everything, he tried, but anyhow because of the system he failed, and then ultimately he was forced by this system to file a case before a court. उसका नाम क्या है, आपके साथ क्या धोखा हुआ है, क्या स्कैम हुआ है, हमें विस्तार से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मयूरी पुंडा है और मैं अंबरनाथ से हूँ। मेरे हस्बैंड कोविड में गुजर गए हैं और सिविल हॉस्पिटल में, और उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था होम लोन का, तो अभी 1.5 साल 2 साल होते आया है उनको गुजरे हुए। तो उन्होंने हमें ऐसे 1 साल तक ऐसे बोला कि आपका क्लेम पास हो जाएगा, और मुझे बहुत सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स मेरे से मंगाए गए, और मैंने हर जगह घूम के, मेरी माँ घूम के
हर जगह पेपर्स हम लोग ने सबमिट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके हस्बैंड का जब बॉडी दिया गया तभी कौन सा डॉक्टर था, कौन सी सिस्टर थी, ये तक वो लोग ने मंगाया हमको थाने हॉस्पिटल से। हमारे चैनल के द्वारा आपसे धोखा हुआ है तो हमारे चैनल के द्वारा आपकी क्या मांगे आप हमारे चैनल के द्वारा आप पहुँचाइए। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे घर में भी हालत ख़राब है खाने पीने का, और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे को जल्दी से जल्दी क्लेम भर के मिल जाए और घर सब मेरा, बस उतना ही एक मेरा सहारा है मेरे बच्चों को और छत का, बस वो कैसे तो आप क्लियर करवा के दीजिए, बस बहुत मेहरबानी हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील बाफना, जिनका हाल ही में आदित्य बिरला इंश्योरेंस के साथ एक क्लेम को लेकर के बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो हम उनसे बात करते हैं कि ये फ्रॉड जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज जब हम एक लाइफ की पॉलिसी लेते हैं तो वो अपने फ्यूचर को देख के लेते हैं, और फ्यूचर में ही जब फ्यूचर ही अनसर्टेन हो जाएगा तो क्या है सर फ्यूचर की अनसर्टिनिटी जो आदित्य बिरला ने आपके लिए क्रिएट की है? ये जो हमने पॉलिसी ली थी ये मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए लिया हुआ था, और एक हमने हमारा बिज़नेस तकलीफ़ में चल रहा था तो हमको लोन चाहिए था। तो उन्होंने हमें बताया कि आप अगर 25 लाख का एनुअल प्रीमियम का पॉलिसी लेते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का या तो हम टर्म लोन आपको मिलेगा, और अगर ना मिल पाए तो आपको हम 25 लाख के सामने 32 लाख रुपए 13 महीने में वापस दे देंगे। ये सब सिस्टम जनरेटेड ऑफ़र थे, ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिसर आकर हमारे यहाँ बोल करके गया, और उसने सिस्टम जनरेटेड ऑफ़र थे। हमने उसमें अप्लाई किया, उन्होंने हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी 3, उसमें हमने 24 लाख 25 लाख के आसपास का प्रीमियम भरा, वो उन्होंने कैंसिल कर दी कि हेल्थ के ग्राउंड पे कि सुशील बाफना का हेल्थ सर्टिफिकेट सही नहीं बना है, और जो एम्प्लॉय थी उसके सामने उन्होंने सब यूजलेस पॉलिसीज हमको पकड़ा करके रख दी। लोन सैंक्शन क्योंकि हमने इसलिए नहीं देखा कि हमें मालूम था कि भाई चलो अगर कल को लोन सैंक्शन नहीं हुआ तो हमें 32 लाख मिल जाएगा। तो बाद में वो ऑफिसर को उन्होंने उठा के अरेस्ट करवा दिया, उसके सामने उन्होंने खुद ही कंपनी ने FIR फाइल करवाया और उसको वो अरेस्ट भी हुआ और बेल पे रिलीज़ हो गया। और हमारे सारे पैसे हमने कोई ऑफिसर को नहीं दिए, आदित्य बिरला कंपनी को दिए। वो आज भी आदित्य बिरला कंपनी में है, आदित्य बिरला इंश्योरेंस सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है, बेनिफिशियरी वो हैं। और हमें कोई भी उसमें जो कमिटमेंट किया हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। जो लाइफ इंश्योरेंस में जो 3 पॉलिसी कैंसिल हुई है उसमें से एक पॉलिसी जो है उसके उसमें कुछ पॉलिसीज़ के मेरे नाम से फर्जी सिग्नेचर करके उसके पैसे भी उन्होंने ट्रांसफ़र किए। तो सर क्या लगता है कि प्रशासन से और कोर्ट से, जो कि हमारे न्यायालय हैं जहाँ पे हम न्याय की गुहार के लिए जाते हैं, क्या वहाँ से आपको न्याय मिलने की उम्मीद है, या फिर जो है वो भी मामला जो है बैलेंस नहीं है कुछ? नहीं, पक्का मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे पुलिस से भी पूरी उम्मीद है। ये खाली ऐसा इशू है कि जिसमें सामने वाले जो पार्टी है वो बहुत बड़ी है, हो सकता है टॉप ऑफ द मैनेजमेंट को नीचे क्या हो रहा है वो पता भी ना होता हो। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमने कंप्लेंट डाली है। आई एम वेरी श्योर कि इन्वेस्टिगेशन विल टेक इट्स कोर्स एंड वी विल गेट सम रिजल्ट्स and we will get favorable results. So there is a need to make the rules more stringent and forcibly implemented, especially with IRDA to these insurance companies, so that these matters can be sorted at a rapid pace. This was Gaurav Narula, True Hunt, Mumbai.